this is Nisha and you're watching English Variety, and today's video is all about preposition. And in this video I'm trying to cover up all the important preposition which is we use in our daily conversation, and through this video you can improve your English grammar as well as your English conversation. So watch till the end and don't forget to subscribe. And so let's start our video and learn preposition. Let us learn what is preposition. A preposition is a word which is used before a noun or pronoun to show its relation to some other word in the sentence. preposition संबंध सूचक शब्द वह शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रनाउन से व्यक्त करें, उसे हम preposition कहते हैं. Consider the examples. Saroj is sitting on the mat. I hit the dog with a stick. He is in the playground. We went to Ambala by bus. On, with, in, by, they all are preposition. Let's learn how many kinds of preposition. Basically there are 5 kinds of preposition, but these 3 are very important, so we learn them one by one. First one is simple preposition. Simple preposition are made of in, on, at, to, from, with, by and extra, and compound preposition are made of about, across, among, between, beside, before and extra. And phrase preposition are made of according to, because of, by mean of, in spite of, on account of, for the sake of, in front of, in case of, owing to, in order to, behalf of, due to, with reference to, instead of, and extra. Now let us learn correct use of simple and compound preposition. Use of in. निश्चित स्थान के भीतर किसी स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए in का यूज़ किया जाता है, जैसे The principal is in the hall, the water is in the jug, in tanga, in a car, in a train, in a bus. बड़े बड़े शहरों, प्रांतों एवं देशों के साथ, जैसे राजीव lives in Delhi, she was born in Punjab. कुछ देर चलने वाले काल के लिए, जैसे India became a republic in 1950. He was born in the month of November. In summer, in winter, in the morning, in the evening, in the afternoon. उस समय के लिए जब कोई काम समाप्त हो या होने वाला होगा, जैसे The train will reach Mumbai in 3 hours. स्थिति और संदर्भ को प्रकट करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, जैसे He was born in riches. In my opinion, she will fail miserably. वेशभूषा की ओर संकेत करते समय वेशभूषा को दर्शाने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ब्राइड वाज क्लैड इन सिल्कन क्लॉथ्स. द प्लेयर प्ले इन देयर प्रॉपर कॉस्ट्यूम. ऑक्यूपेशन या एक्टिविटी कार्यकलाप को दर्शाने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द गार्डनर आर बिजी इन वाटरिंग द प्लांट्स. मदर टेरेसा वाज वेल नोन इन सोसाइटी. दिस इज इम्पॉर्टेंट वन नोट फॉर यू. इन टाइम का अर्थ होता है निर्धारित समय से पहले, जैसे ट्राई टू डू एवरीथिंग इन टाइम. शी ऑलवेज कम्स हियर इन टाइम. नाउ लेट अस लर्न यूज ऑफ एट. एट का यूज निश्चित समय और स्थिति के साथ किया जाता है, जैसे आवर स्कूल स्टार्ट एट 7 AM. माई फादर इज एट होम. I am at your beck and call. She was married at the early age of 20. गांव, उपनगर या कॉलोनी के साथ एट का यूज़ किया जाता है, जैसे I live at रामनगर. I was born at शादरा. He lives at प्रीतमपुरा. उस बड़े नगर के साथ जहां कुछ समय ठहरना हो, जैसे On my way to Agra I shall stay at Delhi. नून, नाइट और डाउन के साथ भी हम एट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट. वी रिटर्न होम एट नून. आई गेट अप एट डाउन. एट दिवाली, एट क्रिसमस, एट दशहरा फेस्टिवल के साथ भी हम एट का यूज़ करते हैं.
रेट बताने के लिए जैसे मैंगोज आर सेलिंग एट 30 रुपये अ किलो। किसी विशेष हाउस, प्लेस या रेजिडेंस से पहले जैसे सुषमा लीव एट अकबर रोड, द कौशिक फैमिली लीव्स एट 444 पहाड़गंज दिल्ली। रीज़न, कोज आदि दर्शाने के लिए भी एट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ सीवियर एक्सीडेंट कोज्ड हिज डेथ एट द इंस्टेंट। किसी पर्व से संबंधित समूचे पीरियड की ओर संकेत करते समय जैसे आई शैल स्टे विद यू एट दिवाली। यू कैन फाइंड वोकैबुलरी एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। यूज ऑफ इनटू, गति अर्थात बाहर से भीतर जाने की अवस्था को प्रकट करने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है जैसे pour some more tea into my cup, the frog jumped into the pond। रूप परिवर्तन के लिए जैसे the translate this passage into हिंदी। यूज ऑफ टू, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए टू का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स गो टू द टेम्पल एवरी डे। मैनी गेस्ट केम टू माई हाउस यस्टरडे। इन्फिनेटिव वर्ब से पूर्व जैसे आई वांट टू बाय फ्रूट्स। समय तथा सीमा बताने के लिए जैसे इट इज़ 10 to 10, इट इज़ 5 minutes to 3। कंपैरिजन, तुलना दर्शाने के लिए जैसे टैरन इज सुपीरियर टू कॉटन, शी इज सीनियर टू मी। फीलिंग्स, भावनाएं दर्शाने के लिए ही इज क्रूल टू द पुअर। रिजल्ट, परिणाम दर्शाने के लिए माई आर्टिकल वाज टॉर्न टू पीसेस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले जैसे हैंड ओवर दिस पेन टू हर, मिसेस शर्मा टीच संस्कृत टू अस। यूज़ ऑफ ऑन, ऑन का यूज़ डे और डेट के साथ किया जाता है जैसे आई शैल रिटर्न टू दिल्ली ऑन मंडे। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जैसे मिस्टर वीपी अपान हैज़ रिटन अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। ऊपर नीचे वाली वस्तु को छूने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी स्लिप ऑन द रूफ, द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, ऑन फुट, ऑन द वे, ऑन द फ्लोर। यूज़ ऑफ अपॉन, अपॉन ऊपर परंतु गति की अवस्था में लगाया जाता है जैसे द टाइगर स्प्रैंग अपॉन द डियर, द लॉयन फेल अपॉन द लैम्ब, ही हिट अपॉन अ नाइस प्लांट। यूज़ ऑफ बाय, किसी व्यक्ति के द्वारा जैसे मिल्क वॉज सोल्ड बाय द मिल्कमैन। घड़ी के साथ जैसे इट इज़ टू बाय माई वॉच। उस समय के साथ जब कोई काम समाप्त हो न हो जैसे ही विल रिटर्न होम 5:30 दिस इवनिंग। बाय का यूज़ एक्शन के रूप में भी करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन कैच हरी बाय द नेक, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, ही पेड द मनी बाय चेक, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस, बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, बाय गॉड एंड बाय कास्ट। यूज़ ऑफ विथ, संगति की अवस्था में जैसे रीता वेंट टू अमेरिका विथ हर मदर। मैनर बताने के लिए विथ का यूज़ किया जाता है। द रॉबर स्टैब्ड द पैसेंजर विथ नाइफ्स, द सोल्जर फाउट विथ करेज। यूज़ ऑफ, संबंध को प्रकट करने के लिए ऑफ का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसेस सुचित्रा शर्मा इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। गुण अथवा कारण को प्रकट करने के लिए भी ऑफ का यूज़ किया जाता है जैसे ही इज़ अ मैन ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर, गुण, ही इज़ डाइड ऑफ कॉरेला, कारण। यूज़ ऑफ ओ डबल एफ, पृथकता अथवा ऊपर से नीचे के एक्शन को प्रकट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जैसे अ बटन ऑफ माई शर्ट हैज़ कम ऑफ, पृथकता, ही फेल ऑफ द स्कूटर, ऊपर से नीचे। यूज़ ऑफ फ्रॉम, किसी स्थान से जैसे शी केम बैक फ्रॉम चंडीगढ़। इंडेफिनिट टेंस में समय के साथ जैसे यू शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो। पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए फ्रॉम का यूज़ किया जाता है जैसे ही प्लेस फ्रॉम डाउन टू डक्स। सोर्स को प्रकट करने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट कम्स फ्रॉम द सन,
These lines are taken from the Sympathy. This is quotation from Kalidas. Use of since. Since का यूज़ परफेक्ट टेंस में निश्चित समय के साथ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन हिम सिंस 1975. आई हैव बिन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस जुलाई लास्ट. यूज़ ऑफ फोर का यूज़ परफेक्ट टेंस में गिनती वाले समय के साथ किया जाता है, जैसे ही हैज़ बिन लिविंग हियर फॉर 2 years. ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years. एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेने के लिए भी फोर का यूज़ होता है. ही बॉट अ रिस्ट वॉच फॉर 1000 रुपी. उद्देश्य के लिए, जैसे द बर्ड वर गैस्पिंग फॉर ब्रीथ. आई डिड इट फॉर योर शेक. यूज़ ऑफ आफ्टर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे शी कम्स होम आफ्टर 10 AM. ऑर्डर क्रम को स्पष्ट करने के लिए, जैसे द डॉग रन आफ्टर द कैट. यूज़ ऑफ बिहाइंड पीछे, जैसे द लेडी स्टूड बिहाइंड द वॉल. द ट्रेन इज बिहाइंड द टाइम. यूज़ ऑफ बिटवीन एंड अमंग. यूज़ ऑफ बिटवीन दो के मध्य में, जैसे डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन 2 sisters. देयर वाज अ सिगार बिटवीन हिज लिप्स. Between 2 stools we come to the ground. Use of among दो से अधिक के मध्य में, जैसे divide this apple among 30 girls. Use of toward, over and above. Use of toward की और sense of direction. He went toward the post office. Use of over बहुत ऊपर. He is overhead and ears in depth. The sky is overhead. Use of above ऊपर. The swimmer's head was above water. The some other preposition across बीचों बीच, through आर पार, along साथ साथ, beside पास में, beside अतिरिक्त, around इर्द गिर्द, like जैसे बराबर. Now let's learn phrase preposition and their correct use. According to अनुसार. He acted according to my advice. उसने मेरी सलाह के अनुसार कार्य किया. Because of कारण. He left the job because of bad health. उसने बुरे स्वास्थ्य के कारण नौकरी छोड़ दी. By mean of के द्वारा. By mean of rob the thief reach the roof of the house. रस्सी के द्वारा चोर मकान की छत पर पहुंच गया. In spite of होते हुए के बावजूद. In spite of being ill, Mr. Pandey did the work. बीमार होते हुए भी पांडे जी ने कार्य किया था. On account of कारण. On account of hard work his health broke down. कठिन परिश्रम के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया. For the sake of लिए. He suffered much for the sake of my brother. मेरे भाई के लिए उसने बहुत कष्ट उठाना पड़ा. In front of सामने. Shiva temple is in front of our house. शिव मंदिर हमारे घर के सामने है. In case of दशा में. In case of need he always comes to me. आवश्यकता पड़ने पर वह सदा मेरे पास आता है. Owing to कारण. Owing to ill health he retired from business. खराब स्वास्थ्य के कारण उसने व्यापार से अवकाश ग्रहण किया. In order to लिए. The traveler lay under a tree in order to take rest. विश्राम करने के लिए यात्री एक वृक्ष के नीचे लेट गया. On behalf of और से. On behalf of his brother he apologized. अपने भाई की ओर से उसने क्षमा मांगी. Due to कारण. He fell ill due to overwork. अधिक कार्य करने के कारण वह बीमार हो गया. With reference to संदर्भ में. With reference to your letter please note my terms. अपने पत्र के संदर्भ में कृपया मेरी शर्तों पर ध्यान दीजिए. Instead of के स्थान पर बजाय. Instead of novel he read the Gita. उपन्यास के स्थान पर उसने गीता पढ़ी. Hope this video will helpful for you and you learn something from this video. And on my next video I will teach you conjunction. Till then don't forget to subscribe and do like, subscribe and share, and thanks for watching.